आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए आपको सीधे संसद की ओर लिए चलते हैं, जहां लोकसभा में इस वक्त बहस होती नजर आ रही है। Cap of 3,000. It is 3,000 crores, sir. It's a request to you because I don't want anything to happen, but if anything happens, how will you cap it at 3,000 crores? I think that's how will you calculate it at 3,000 crores? How have you come to this magic number is my question to the Honorable Minister. Talking about the autonomy of the regulator has to be very, very strong. You are bringing in safety measures, and I will talk about two very small points which nobody else has made, sir. Just very small. Now, decommissioning liabilities. These are very two small points nobody else has said, sir. Decommissioning of liabilities. I hope every investor comes and does well in this country. But if we ever have to decommission a plant, sir, what is the safety that you have put into this bill? Because if a private player comes, when NPCIL does decommissioning, they do an extraordinarily good job. What is the guarantee that a private player will be as careful? Because the taxi cleanup is very, very critical. And sir, in RTI, last 30 seconds, sir, in RTI, concerns regarding transparency in the bill, clause 39 does not allow RTI questions in this bill partially. I understand. If it is of national security, please don't reply to us. But if there are private players, where is the question of national security? So this RTI points are, we have a right to information. You say that it's a transparent and open government. So what is there to hide in this government? आप जवाब दे सकते हैं ना, खोल के जवाब दीजिए, अकल छुपाने के लिए कुछ नहीं. So I request this government that whatever you are bringing in, please, I consider it's a very important bill. I understand it's in the. तो वहीं सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद अली के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च सम्मान मिलने का गौरव का पल बताया। I accept this award with folded hands, with humility on behalf of the people of India. Aam Sagnalo. Honorable members, Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. चलिए रुक करेंगे लखनऊ की ओर, जहां विश्व हिंदू परिषद का लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। गांधी प्रतिमा से शिक्षा विभाग तक मार्च। शिक्षा सुधार को लेकर 5 मांगे रखी गई हैं। कॉलेजों में बुर्के पर रोक की मांग है। अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई। स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की मांग। बता दें कि लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने राजधानी लखनऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा विभाग तक पैदल मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में चेहरा ढकने वाले बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। कैंपस में बढ़ते विवाद रोकने और हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक की मांग उठी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोचिंग संस्थाओं को बंद करने और मानकों की जांच की मांग की गई है। स्कूलों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू कर नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई है। जय श्री राम।
वहीं बढ़ेंगे राजधानी दिल्ली की ओर, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम नियम लागू। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में जाएंगे सिर्फ आधे ही कर्मचारी। मजदूरों के खाते में 10,000 ट्रांसफर करेगी सरकार। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। कल यानी कि गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिया गया। बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि ग्रेप 3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए का मुआवजा भी देगी। श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। वहीं लखनऊ में आयोजित यूपी पीएसी के संस्थापना दिवस समारोह 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने पीएसी बल को 78 वर्षों के गौरवशाली इतिहास के लिए उनके संस्थापना दिवस पर बधाई भी दी। सीएम योगी ने कहा कि ये 78 वर्ष पीएसी बल के अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण का एक गौरवशाली इतिहास है। पीएसी बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भी बधाई दी। पीएसी के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक पीएसी बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश पीएसी बल एसएसएफ के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, एटीएस एवं एसटीएफ के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां निजी कार्यक्रम में शामिल होने आगरा पहुंचे अजय राय। भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधते नजर आए। बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया में अब तक कई मौतों का दावा भी किया है उन्होंने। अजय राय आगरा पहुंचे निजी कार्यक्रम में शामिल होने। बता दें कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आए, जिस दौरान एसआईआर प्रक्रिया में अब तक कई मौतों का दावा भी किया। कई लोगों के डिप्रेशन का शिकार होने का आरोप तक लगाया। मनरेगा का नाम बदलने पर भी भाजपा सरकार पर तंज कसते नजर आए अजय राय। योजनाओं के नाम पर भी राजनीति का आरोप लगाया है। निजी कार्यक्रम में आगरा पहुंचे कांग्रेस नेता अजय राय ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक कई लोगों की मौत होने का भी दावा किया। अजय राय ने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मनरेगा का नाम बदले जाने पर भी उन्होंने तंज कसा है सरकार पर। साथ ही सरकार पर योजनाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप तक लगाया। नाम परिवर्तन करने का कार्य करती है ये पूरी सरकार, नाम परिवर्तन वाली सरकार है। आपने देखा होगा इसके पहले भी अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी जी ने अपने नाम से कर दिया। तो मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि बापू का जो अपमान करना, अपने सरदार पटेल का अपमान किया, बापू का अपमान करना है, तो मनरेगा का नाम भी मोदी जी अपने नाम से कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा मुफीद रहेगा।
चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ललितपुर में बच्चों का बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कंपोजिट विद्यालय सिविल लाइन का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं और पाठन कार्य का भी जायजा लिया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान यहां बच्चों की कम उपस्थिति पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों को फटकार तक लगाई, तो वहीं बच्चों से संवाद कर विद्यालय में शिक्षण कार्य, मिड डे मील सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि आज के बच्चे देश का भविष्य हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे निखारना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कहीं कोई लापरवाही और चूक ना हो। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मिड डे मील से लेकर बच्चों के लिए जो जो व्यवस्थाएं की गई हैं विद्यालय में, उसका जायजा लेने जिलाधिकारी पहुंचे। शिक्षकों तक को फटकार लगाते नजर आए क्योंकि बच्चों की उपस्थिति कम थी, जिस वजह से जो मौजूद शिक्षक वहां पर थे उन्हें फटकार भी लगी है। हालांकि आपको बता दें कि बच्चों से संवाद के दौरान विद्यालय में शिक्षण के कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, मिड डे मील कैसे व्यवस्थाएं की जा रही है, उसके लिए साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लिया है जिलाधिकारी ने। उन्होंने निर्देश तक दिए कि आज के बच्चे आने वाले भविष्य हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं रुक करेंगे आगरा की ओर, जहां घर के बाहर खेलते वक्त गायब हुई बच्ची, 7 साल की बच्ची के गायब होने से हड़कंप मच गया है। जी हां, ये खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां घर के बाहर खेलते वक्त बच्ची गायब हो गई है। 7 साल की बच्ची के गायब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और परिजनों की खोजबीन में बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस टीमें और डॉग स्क्वाड सक्रिय हैं। बच्ची की बरामदगी के लिए कई टीमें तक लगाई गई हैं। मानसिक रूप से कमजोर भी है बच्ची, 7 वर्ष की बच्ची है जो गायब हो गई है। बता दें कि थाना शमशाबाद क्षेत्र के गढ़ी थाना का ये पूरा मामला है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में घर के बाहर ही बच्ची खेल रही थी, मानसिक रूप से कमजोर थी, 7 वर्ष की बच्ची बताई जा रही है। अचानक से लापता हो जाने पर उसके पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। पुलिस तत्काल गुमशुदगी का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। एसीपी गिरीश कुमार भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है, जिससे उसकी सुरक्षा और तलाश को लेकर काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाया गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से गोवा लाया गया। बता दें कि चेस्ट पेन होने की वजह से लूथरा भाइयों को नॉर्थ गोवा के जिला अस्पताल लाया गया है। बता दें कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक हैं। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको गोवा अग्निकांड मामले में बता रहे हैं, जहां आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाया गया है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली से गोवा ले जाया गया। बता दें कि चेस्ट पेन होने की वजह से लूथरा भाइयों को नॉर्थ गोवा के जिला अस्पताल लाया गया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों नाइट क्लब के मालिक हैं। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी, जिसकी तस्वीरें आप सभी ने देखी। 25 लोगों की उस आग की चपेट में आने से मौत तक हो गई थी। इसके बाद दोनों भाई थाईलैंड फरार हो गए थे, लेकिन अब दोनों को पकड़ लिया गया है, धर दबोच लिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत भी आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली से गोवा उन्हें लाया गया। हालांकि चेस्ट पेन होने की वजह से दोनों भाइयों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि लूथरा भाई जो है दोनों चेस्ट पेन होने की वजह से नॉर्थ गोवा के जिला अस्पताल में पहुंचे हुए। वहीं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों उस नाइट क्लब के मालिक हैं जहां भीषण आग लग गई थी 6 दिसंबर को, जिस दौरान 25 लोगों की आग की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से डीसीएम टकराई है। बता दें कि डीसीएम में बैठे 3 लोगों की मौत हुई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर के रहने वाले हैं मृतक और घायल भी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अहिरौली थाना क्षेत्र के यादव नगर के पास की ये दुर्घटना बताई गई है। अंबेडकर नगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में डीसीएम टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि डीसीएम में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दीवार तोड़कर घर में घुसी अनियंत्रित कार। जी हां, बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दीवार तोड़कर घर में अनियंत्रित कार घुस गई। कार में 4 लोग सवार थे। मौके पर 2 की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल भेजा है। बलिया के धरहरा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कटरा में घुस गई। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे तक उड़ गए हैं। घर में सोए लोगों में खलबली मच गई। टक्कर की आवाज सुन आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है और 2 युवकों को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। ये खबर हम आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घर में सोए लोगों में खलबली मच गई थी जब कार जाकर दीवार से टकरा गई। ये बड़ी खबर बलिया से है, जहां धरहरा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कटरा में घुस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे तक उड़ गए। घर में सोए लोगों में खलबली भी मच गई थी। उस दौरान बता दें कि टक्कर की आवाज सुन आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बता दें कि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस भी सूचना मिलते पहुंच गई थी। वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है। चलिए रुक करेंगे हरदोई का, जहां इस वक्त की बड़ी खबर, एक गुमटी में भीषण आग लग गई है। तेज धमाके के साथ कार्बन सिलेंडर जो है वो फट पड़ा है। कार्बन सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अज्ञात कारणों के चलते गुमटी में ये आग लगी है। आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। आग पर काबू भी पाया गया। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में लगी हुई है। बिहानी कोतवाली क्षेत्र के करावत राहे की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण तरीके से लगी हुई है। तेज धमाके के साथ कार्बन सिलेंडर बुरी तरीके से फट पड़ा था। बता दें कि कार्बन सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गई थी। हालांकि आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, उसके बाद आग पर काबू तक पाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है, किस वजह से ये आग इतनी ज्यादा भीषण लगी और बेकाबू हो गई। बता दें कि बिहानी कोतवाली क्षेत्र के करावत राहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों के चलते गुमटी में ये आग लगी है, लेकिन आग लगने से कार्बन सिलेंडर फट पड़ा है। वहीं बढ़ेंगे आगरा की ओर, जहां हाईवे पर बने कट पर खड़ी कार में आग लग गई है। जी हां, आगरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाईवे पर बने कट पर खड़ी कार में आग लगी। पुलिस की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर फायर उपकरण से आग पर काबू पाया। कट पर रुकी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आगरा थाना कमलानगर अग्रवाल हॉस्पिटल के पास ये आग लगी। बता दें कि खबर आगरा से है, जहां कमलानगर पुलिस ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दरअसल हाईवे पर बने कट पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। एक मामले में जांच करने पहुंचे थाना अध्यक्ष ने तत्काल टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिली कि गैस की जो गाड़ी है उसमें आग लग गई है, जो पुल के किनारे खड़ी हुई थी, उसमें आग लगी। मैंने जैसी मेरी सूचना मिली तो मेरे से मिलने आए हुए थे साहब, SSO साहब योगेश जी, उनसे मिलने आए हुए थे और बाकी सारी पुलिस की टीम थी कमलानगर की। उन्होंने देखते ही सब लोग भागे नहीं थे। हम लोगों ने होटल से सिलेंडर दिए, लेकिन उस गाड़ी के पास कोई नहीं जा रहा था। पुलिस ने पूरा साहस दिखा के, अगर पुलिस फायर ब्रिगेड का वेट करती तो ये गाड़ी नहीं बच पाती।
चलिए अब आपको आईपीएल से जुड़ी सबसे जरूरी खबर बता देते हैं, जहां आगरा के कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। बता दें कि कार्तिक शर्मा पर चेन्नई ने बड़ा दांव खेला है। जी हां, आईपीएल से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां आगरा के कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने। कार्तिक शर्मा पर चेन्नई ने सबसे बड़ा दांव खेला। बता दें कि कार्तिक को सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड प्राइस पर खरीदा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां कार्तिक को सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड प्राइस पर खरीदा है। रणजी के डेब्यू मैच में कार्तिक ने शतक जड़ा था। कार्तिक की सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। जी हां, ये आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं प्रशांत वीर के चयन पर जिले में जश्न का माहौल है। कभी चयन ना होने पर छोड़ना चाहते थे प्रशांत क्रिकेट, लेकिन आज देखिए आईपीएल में सीएसके ने एक बड़ा दांव चल दिया उन पर। उत्तर प्रदेश के हरियाणा और उत्तराखंड से सटे जिले सहारनपुर का नाम क्रिकेट में बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहा, लेकिन आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्लेयर के बिकने की घोषणा वाली हथौड़ी की एक फाइनल चोट ने इस शहर को क्रिकेट के नक्शे पर अचानक ही फेमस बना दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में। ये तो जैसे हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि मैं आईपीएल खेलूं, और आज ईश्वर कृपा है कि उसको वो भी चाहता था, बहुत पहुंच गया है। बचपन में ही ये बहुत अच्छा खेलता है, जब से खेलना शुरू किया है। जैसे कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, दैव प्रदत्त, तो ये क्रिकेट में ही मैंने इसको देखा। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, फुटबॉल भी अपने समय में नंबर 1 खेलता था। जैसे ये है ना, शरीर से भी बहुत अच्छा है। तो ये है कि जैसे मतलब कि जैसे खेल के लिए ही बना हो, कुछ आदमी मान के चल सकते। बहुत अच्छा किया है, बहुत सब नाम रोशन हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अरे हम लोग वहीं साथ में बैठ के देख रहे थे, साथ में सब लोगों ने बुलाया कि आके यहीं बैठो, सब लोग देखे, साथ में देख रहे थे। तो फिर जब नाम उसका आया तभी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चलो आईपीएल में हो गया। उसके बाद बोली भी आगे बढ़ी तो और ज्यादा खुशी हो गई, लेकिन मेरे बेटे का आईपीएल में हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोहरे और ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिए हैं, कोई व्यक्ति खुले में सोता ना मिले, निरीक्षण किया जाए। सीएम योगी ने आदेश दिया है। मंडला आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। शीत लहर में निराश्रितों की समुचित व्यवस्था भी हो। वहीं आपको बता दें कि अलवा हीटर की भी पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण हो, समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौशाला में अलाव गौवंश को ठंड से बचाने की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के भी निर्देश हैं। अधिकारी फील्ड में सतर्क रहे, कोई खुले में ना सोए। जरूरतमंदों को लगातार कंबल भी वितरित किए जाए। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे। रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।